Hi students. So we will continue with our chapter, and till now we have discussed until the embryological evidences, that is the study of the embryo and comparative study of the embryo at the very early stage of different animal and or organism to understand the evolutionary relationship between each one of them. So we have studied most of the embryos. We have done a comparative studies of most of the embryo at the very early stage, and what we have found out that there is, there are very few differences at the early stage of the development. Right? It shows us that all the complex organism or the modern organisms or animals, the most advanced animals of the organism, they have all evolved from the same simple source, right? Then in that we have discussed about the you know temporary embryonic structure, then recapitulation theory, right? That is also known as biogenetic law, right? And also we have discussed some other topic as well. Now we'll discuss about the next topic, and that is your next evidence actually. That is your biogeographical evidence, and before that we'll talk about paleontological evidence, and there we'll talk about because we have already studied about the paleontological evidences, and that is the evidences what we actually study, what we do on the basis of this fossils, what we get actually of a particular animal. So there we'll talk about horse. Okay, so that is also very important. So before we start, we need to talk and we need to discuss what is geological time scale. So पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू लेके, क्विक ओवरव्यू एंड विल मूव ऑन. जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब होता है जो अर्थ का हिस्ट्री है सिंस इंसेप्शन टिल नाउ. We have divided the entire time into six zone or six division. We have divided the time in six division, and each one is known as era. So there are six era, namely Azoic era, Archaeozoic era, then Proterozoic era. Then we have Paleozoic era, Mesozoic era, and Cenozoic era. Now, the last three era, that is Paleozoic, Mesozoic, and Cenozoic, these eras are considered as the modern era. Modern era means these are the most recent compared to the first three. And these last three era are actually, again further divided into periods. Means again further division of the time zone. Then these periods are again divided into some other different parts or other different time zone. It is divided into other different types of time zone, and that is we know that we call it as epoch. What do you call it? We call it as epoch. Okay, and these periods further divided into epoch. So हमने क्या किया, हमने जो अर्थ का पूरा हिस्ट्री है उसको हमने डिवाइड कर दिया पहले बेसिकली 6 टाइम जोन में, जिसको हम लोग ईरा कहते हैं. उसके बाद हमने उसको फिर से डिवाइड कर दिया, जो लास्ट के जो तीन आपके टाइम जोन है उसको हमने फिर से डिवाइड किया पीरियड्स में. फिर पीरियड्स को हमने डिवाइड कर दिया इपोच में. ठीक है, तो ये है टाइम स्केल, और यहीं पे हम ज्यादातर जो बात करेंगे, जो देखेंगे तो हम इपोच में देखेंगे. ठीक है, जो फाइनल जो टाइम जोन का डिवीजन है इपोच, मीन्स हम जब स्टडी करेंगे जैसे हॉर्स के फर्स्ट फॉसिल के बारे में जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, या नॉर्मली हम जो स्टडी करते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तो उसमें हम देखेंगे इपोच तक ही हम ज्यादा तक बात करते हैं, या उसके बाद नेक्स्ट हो गया तो हम पीरियड्स तक जाते हैं, लेकिन ईरा तक नॉर्मली हम नहीं जाते. ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी लॉन्ग बैक, द स्टोरी इट्स वेरी वेरी ओल्ड. ठीक है, तो वो बहुत पीछे है, टाइम में बहुत पीछे चला जाता है. लेकिन हम जो क्योंकि जो अभी रिसेंट जो
ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म से आपके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है, ये सब रिसेंट पास्ट में हुआ है. दैट इज फ्रॉम द in most of the epoch or in some time in the period, right? So we'll see and we'll discuss one by one that. So here I have a table, and I will show you the another table as well, where I have a diagram as well, and we'll discuss that part also in detail. अब देखो phylogenetic lineage. Before I start, you can see there is a term I have written there, that is here we are going to study the comparative. We are going to have a comparative study of horse fossil, and that is actually I have mentioned as phylogenetic lineage. Actually क्या होता है कि phylogenetic lineage मतलब fossils, मतलब थोड़ा सा इसको समझना है आपको. मान लीजिए कि हमें एक फॉसिल मिला, मान लेते हैं कि आज हमें एक फॉसिल मिला महाराष्ट्र से. डेट है, मान लो कि आज का डेट है कि 3 जुलाई 2020. वी गॉट अ फॉसिल ऑफ अ हॉर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, स्पेशली फ्रॉम बाराबंकी. लेट अस कंसीडर. अब वैसा ही फॉसिल शायद गुजरात में किसी और को मिला होगा 2008 में, और फिर दूसरा हॉर्स का एक फॉसिल हमें मिला पंजाब में, जो कि ये जो फॉसिल गुजरात और महाराष्ट्र में जो हमें मिला है बिल्कुल उससे अलग है. वैसे ही कहीं और हमें कोई और फॉसिल मिला, तो हम क्या करेंगे, ये सारे फॉसिल जो अलग अलग है, जो सिमिलर फॉसिल है हम उसको नहीं लेके आएंगे, जो अलग अलग है उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको हम साथ में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वाला फॉसिल ज्यादा इवोल्यूशनरी एडवांस है और मॉडर्न जो हॉर्स है हमारे उसके बिल्कुल लगभग कैरेक्टरिस्टिकली सेम है और बिल्कुल पास है कंपैरेटिवली. ठीक है. और कौन सा वाला मतलब जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेस एडवांस है, लेस कॉम्प्लेक्स है, और हम जिसे कह सकते हैं जो फॉसिल जो है वो प्रॉपर फॉसिल स्टडी करके हम बता सकते हैं कि कौन सा जो फॉसिल है वो ज्यादा एडवांस है. ठीक है. मतलब जो एडवांस मतलब क्या है, जो मॉडर्न हॉर्स को हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड मान लेते हैं. मॉडर्न हॉर्स के साथ कौन सा फॉसिल ज्यादा सिमिलर है और कौन सा सबसे कम सिमिलर है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं कि सबसे कम सिमिलर कौन है और पुराना सबसे कौन है, उसके बाद लेटेस्ट कौन है, उसके साथ क्या क्या सिमिलरिटीज, उसका सिमिलरिटी जो मॉडर्न हॉर्स से होगा वो थोड़ा और ज्यादा होगा कंपेयर टू द लास्ट वन. ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, we try to find out the fossils, and we have to actually line up the fossil to actually link them in such a manner that we can understand the evolution of the particular animal. इसी को बोलते हैं phylogenetic lineage. ठीक है. तो ये कोई 1-2 साल में नहीं होता, ये सालों का रिसर्च लगता है. We have to collect the fossils of different type from different areas, then you have to compare it, you have to study it, and you have to see that which is the most oldest, which is the most primitive, which is most simple type, and which is the most recent one, and what is the complexity and what is the resemblance of that particular the most recent one with the modern horse or the modern animal actually in this case, in that case. ठीक है. इसी को बोलते हैं phylogenetic lineage. So यहाँ पे क्या है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पे भी ये भी समझना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एनिमल के केस में हमें मतलब ये हम कह सकते हैं ना, ये थोड़ा लकी भी है मतलब और थोड़ा मेहनत का भी काम है, तो हमें बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है. ठीक है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा इतने सारे फॉसिल मिल जाएंगे जो कि हमें पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उस पर्टिकुलर एनिमल का बता देगा. हर एक स्टेज हमें उसके स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ, उस स्टेज की जो डेवलपमेंट हमें जो है वो पता चल जाएगा अलग अलग फॉसिल से. ये बहुत मुश्किल है, ये हमेशा नहीं होता है. ठीक है. ये हमेशा नहीं होता. इसीलिए अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ह्यूमन इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, तो वहां पे भी ना बहुत सारा मिसिंग लिंक है. मतलब हमें बहुत सारे फॉसिल्स के बीच में क्या स्टेज था हमारा. ठीक है. बहुत सारे स्टेजेस के बीच में क्या स्टेज था, बीच का उसका जो स्टेज था वो हमें अभी तक नहीं पता. सो देयर आर सम गैप, बहुत ज्यादा गैप है. मान लीजिए हमें एक फॉसिल मिला है आज से 10,000 साल पहले का. ठीक है. उसके बाद फॉसिल मिला है आज से 4,000 साल पहले का, लेकिन उसके बीच हमें कुछ भी नहीं मिला, तो फिर यहां पे एक गैप बन जाता है.
ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमें कितना फॉसिल मिला और किस किस टाइम पीरियड से मिला, कितना रिसेंट मिला और कितना पुराना मिला। ठीक है, उसके हिसाब से हम एक फाइलोजेनेटिक लीनिएज बना सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता चलेगा कि वो कैसे डेवलप हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, कैसे वो अपने आप को इवॉल्व किया एंड आज जिस स्टेज में आया है, पहुंचा है, जिस स्टेज को अचीव किया है, वो कैसे हुआ। ठीक है, so let us start with horse. We'll discuss horse because it is in our syllabus. Apart from that, there are very sequenced and systematic phylogenetic lineages are also available for camel, elephant. ठीक है, तो हम horse की बात करेंगे क्योंकि horse हमारे syllabus में है। So let's start. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आप थोड़ा सा ये टेबल को देख लीजिए, ये कॉलम बना लीजिए। टेबल क्या है, पहले लिखा है साइंटिफिक नेम, उसके बाद लिखा है कॉमन नेम, फिर इपॉच, मैंने कहा था कि हम ज्यादातर इपॉच में ही देखेंगे तो इपॉच ही है। देन एज, कितना पुराना था, टाइम, हाइट क्या था, फिंगर्स, क्योंकि जो हॉर्स है ना, हॉर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है, इवोल्यूशनरी चेंजेस, इवोल्यूशन के दौरान उसने जो चेंजेस उसमें हमें दिखा, वो हमें मैक्सिमम जो उसके लिम्स है उसमें है मैक्सिमम उसके चेंजेस। तो इसीलिए हमने क्या देखा यहाँ पे, फिंगर्स क्या थे, टोज का नंबर क्या था, और क्या चेंजेस हमने देखा, दांत, मतलब जो टीथ है, कौन सा, मोलर स्पेशली। ठीक है, तो ये हमने ज्यादा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना के हमने स्टडी किया है, हमने कंपेयर किया है अलग अलग जो फॉसिल हमें मिला है हॉर्स का उसको। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहला जो फॉसिल हमें मिला था, द फर्स्ट फॉसिल व्हाट वी हैव गॉट, the first fossil what we got, that is actually the fossil that first we got, that was Eohippus. Eohippus was the first fossil. अब Eohippus में क्या था, it is इसका ये जो फर्स्ट फॉसिल था जो हमें, मैंने मतलब ओल्डेस्ट फर्स्ट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बीच में हमें कुछ नहीं मिला होगा, इसका पहले नहीं मिला होगा, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि ये वाला जो फॉसिल है, we start from here and we take it as a standard that from this species might have this species actually might have started the process of evolution and finally we got the modern horse today. So ये हम ये मानते हैं after all the studies, right? तो all is started from Eohippus, that is the scientific name of the first fossil, and its common name क्या था इसका, Dawn horse. कौन से इपॉच में मिला था, देखो इपॉच बहुत सारे हैं, आपको सारे इपॉच याद नहीं रखने हैं, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, बस उसको थोड़ा सा याद रखना, दैट इज एनफ। जब हम हॉर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो भी फॉसिल्स हमने पढ़ा वो कौन से इपॉच से थे, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी अदर इपॉचेस आर देयर, देयर इज नो नीड ऑफ मग दोस टाइप ऑफ दोस इपॉचेस, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, दिस मच इज एनफ फॉर यू, राइट? Now, the epoch is Eocene and the age of that fossil is 60 million years. तो देख सकते हो कितना पुराना है, 60 million years old हमें epoch, हमें जो फॉसिल मिला था उसका नाम था Eohippus, और यहीं से शायद हॉर्स ने अपना जो इवोल्यूशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हाइट कितना था इस हॉर्स का, देखो बहुत कम था। आज मॉडर्न हॉर्स इतना छोटा नहीं होता, बहुत ही बड़े होते हैं वो। देखो ये पहला जो हम देख रहे हैं इसका कितना था, ये जो पहला वाला जो फॉसिल 28 सेंटीमीटर ओनली इसका हाइट था। ठीक है, और फिंगर्स देखते हैं कितने थे, सी द फिंगर्स दे हैव, दैट वाज 4। ठीक है, और उसमें से आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल। पहले यहां थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एट द एंड आई विल शो यू अ डायग्राम वेयर आई विल डिस्कस द डायग्राम एज वेल एट द एंड, राइट? तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। Fingers, 4 fingers, they have 4 fingers. First digit modified into splint bone. देखो splint bone मतलब क्या होता है ना, छोटा बोन हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, reduced हो जाता है। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए फिंगर्स, 5 होना चाहिए, लेकिन उसमें से कितने मॉडिफाई होके छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस हो गया। फर्स्ट केस में, फर्स्ट फॉसिल में हमें क्या लिखा, फर्स्ट डिजिट है, वो क्या हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। ठीक है, और मॉडिफाई होके रिड्यूस होके क्या बन गया, स्प्लिंट बोन बन गया। ठीक है, और टोज कितने हैं, टोज आर बेसिकली 3 टोज आर देयर। ठीक है, 3 टोज थे जो कि फंक्शनल थे। ठीक है, फर्स्ट एंड फिफ्थ अगेन मॉडिफाइड इनटू स्प्लिंट। ठीक है, तो फिंगर में हमने क्या देखा,
कि फर्स्ट जो फिंगर है वो मॉडिफाइड होके रिड्यूस्ड हो गया, इसको स्प्लिंट बोलते हैं हम। और टो जितना पांच टो है तो उसमें से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वर फंक्शनल, बट फर्स्ट एंड फिफ्थ वर मॉडिफाइड इनटू स्प्लिंट। तो टो में क्या हुआ, पांचवा और first and fifth actually modified into splint, that is reduced bone, and in case of fingers only the first digit is modified into splint bone, right? So that was a case in the first fossil. Next, molar अगर हम देखेंगे, दांत अगर हम देखेंगे, उनका मोलर जो था वो कैसा था? See, मोलर में हम क्या देखेंगे, it was having small crown. जो क्राउन पार्ट होता है टीथ का, आपने पढ़ा होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में आपने पढ़ा होगा, क्राउन पार्ट, हेड पार्ट, रूट पार्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो मोलर है उसका जो क्राउन पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा जो क्राउन पार्ट है वो बहुत ही छोटा था, स्मॉल था, ठीक है। और बेसिकली ये जो पर्पस था ये टीथ का, उनका जो खाने का, उस समय उनका जो फूड हैबिट था वो ग्राइंडिंग पर्पस था। मैक्सिमम क्या करते थे, ग्राइंड करते थे, जो भी खाते थे उसको ग्राइंडिंग पर्पस के लिए इसको यूज करते थे, ठीक है। Now, so that was the first horse. Next is first fossil. Next is Meshippus. इसको कहते हैं इंटरमीडिएट हॉर्स। ये कौन से इपॉक में पाया गया था? ओलिगोसीन, ठीक है। और पुराना कितना है? 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है? 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड। हाइट देखो बढ़ गया कितना, पहले कितना था? 28 था, और बढ़ के 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। फिंगर्स देखिए अभी क्या होगा, पहले कितना था? 4 फिंगर फंक्शनल था, अभी कितना हो गया? घट गया एक फिर से, 3 फिंगर्स आर फंक्शनल। देन पहले क्या था? फर्स्ट डिजिट मॉडिफाई हो गया था, अभी क्या है? फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों ही मॉडिफाई होकर क्या बन गया? रिड्यूस हो गया, उसको बोलते हैं स्प्लिंट बोन। टोस का क्या हाल है? टोस सेम ही है, जो पहले कंडीशन में टोस का जो कंडीशन था वैसा ही है। 3 टोस पहले भी फंक्शनल थे, इसमें भी 3 टोस हैं, 2 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मॉडिफाई कौन हो गया? रिड्यूस कौन हो गया? फर्स्ट एंड फिफ्थ वन गेट रिड्यूस्ड। और टीथ का अगर देखेंगे दैट वाज आल्सो ऑलमोस्ट सेम। तो वहां पे हमें अलग से डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉसिल। नेक्स्ट फॉसिल क्या है? मेराइकहिपस। मेराइकहिपस का कॉमन नेम क्या था? र्यूमेटिंग हॉर्स। और कौन से इपॉच में पाया गया था? मियोसिनी। कौन से इपॉच में? मियोसिनी इपॉच में पाया गया था। कितना पुराना है? 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड। देखो कितना हम धीरे धीरे पास आ रहे हैं मॉडर्न हॉर्स के, ठीक है। हाइट भी देखो चेंज हो रहा है, पहले कितना था? 28 था, फिर हो गया 60, फिर हो गया 100, अब ये 100 है, ठीक है। नाउ फिंगर्स की बात करेंगे फिर से। अगेन 3 फिंगर्स आर एक्चुअली फंक्शनल, ठीक है। सो सेकेंड, फोर्थ they have again modified into the splint bone, ठीक है। The first and fifth is almost reduced. पहला और फिफ्थ जो है वो बिल्कुल फिर से, मतलब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहां तक क्या था, यहां पे जो 3 फिंगर्स थे वो फंक्शनल थे, लेकिन यहां पे क्या है? सिर्फ ओनली द थर्ड वन इज फंक्शनल। तो देयर इज अ डिफरेंस। पिछला वाला हमने जो देखा उसमें 3 फिंगर्स जो फंक्शनल थे, फर्स्ट एंड फिफ्थ जो था वो रिड्यूस होकर स्प्लिंट बोन बन गया था। लेकिन अभी इस केस में जो लेटेस्ट रूमेटिंग हॉर्स जो है, जिसका कॉमन नेम है, इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला जो है फिंगर वही फंक्शनल है। सेकेंड, फोर्थ वो चेंज होके रिड्यूस होके स्प्लिंट बन गया, और फर्स्ट वाला, फिफ्थ वाला जो पहले से स्प्लिंट बोन बना हुआ था वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। हम इसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, अभी लगभग है ही नहीं, बहुत कम हो गया, ठीक है। ये कंडीशन है। टो में कैसा हुआ? यहां पर भी ओनली द थर्ड टो इज फंक्शनल, सेकेंड एंड फोर्थ चेंजेस इनटू स्प्लिंट, और वही जो फर्स्ट एंड फिफ्थ था वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, बिल्कुल just same like the fingers, ठीक है। So that is the third fossil. And what about the crown? What about the teeth? यहां पे जो मोलर है
यहाँ पे मोलर का जो क्राउन है वो पुराना जो फर्स्ट दो हमने फॉसिल पढ़ा था उसमें उसका जो क्राउन था वो स्मॉल था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। द क्राउन इज लॉन्गर एंड द रूट इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड कंपेयर टू द लास्ट टू फॉसिल्स। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये हो गया, नाउ दीज टीथ्स आर मॉडिफाइड नाउ एंड दे आर नाउ गुड फॉर ग्रेजिंग पर्पसेस। तो पहले ग्राइंडिंग पर्पस सिर्फ था, नेक्स्ट एडवांस होने के दो फॉसिल जब हमें मिल गया, हम जो उसके बाद हमने जो देखा रिमिटिंग जो हॉर्स है उसमें हमने क्या देखा कि जो टीथ है वो मॉडिफाई हो गया है और वो नाउ द टीथ इज एक्चुअली केपेबल ऑफ और इट इज फंक्शनल एंड इट इज यूजफुल फॉर grazing purpose, right? So this is all about the three fossils of the horse and we need to discuss some more as well. Let's move on. Next, अभी तक मॉडर्न हॉर्स तक नहीं पहुंचे हैं, so we need to discuss the next fossil also after the repeating horse. Yeah, the next fossil is Philohippus. ठीक है, Philohippus उसका कॉमन नाम क्या है? Pliocene horse. कौन से कॉल में मिला था? प्लियोसीन एपॉच में मिला था। कितना पुराना है? 10 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, हाइट देखो बढ़ गया, पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 108 सेंटीमीटर। फिंगर्स अभी देखो जो थर्ड जो फिंगर था सिर्फ वही फंक्शनल था, राइट? सो द थर्ड डिजिट बिकम इवन स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर। पहले तो फंक्शनल हो गया, अभी फिर क्या हो गया? अभी और लंबा भी हो गया और स्ट्रॉन्गर भी हो गया। सिर्फ थर्ड वन, ध्यान देना, सिर्फ थर्ड वन, थर्ड फिंगर। टोज का भी कंडीशन वही सेम है जो हमने पहले देखा, थर्ड वन इज ओनली फंक्शनल, मोलर्स अभी फिर से ग्रेजिंग टाइप का हो गया एंड दैट विल कंटिन्यू। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द मॉडर्न हॉर्स दैट इज योर इक्वस। सो मॉडर्न हॉर्स जिसे हम कहते हैं इक्वस, मॉडर्न हॉर्स का जो नाम है उसको हम बोलते हैं इक्वस। और इक्वस इज actually we used to find out we got the equus, और equus कितना पुराना है अगर हम देखेंगे कौन से टाइम पीरियड में हमें मिला है, so that is during the Pleiostocene era जो है, सॉरी epoch जो है उसमें मिला था। और कितना पुराना है? 0.5 मिलियन ईयर ओल्ड। तो कितना कम है देखिए, कहाँ 10 मिलियन ईयर ओल्ड और कहाँ पे 0.5 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, तो हाइट कितना हो गया इसका भी? अप्रोक्सीमेटली 150। बहुत सारे बुक में दिया रहेगा 120 to 150, बट वी विल कंसीडर इट एज अ स्टैंडर्ड 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिंगर्स क्या है मॉडर्न हॉर्स का? हम देखेंगे द ओनली 1/3 डिजिट बिकम वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम भी है, आई हैव मेंशन द डायग्राम हियर एंड आई विल शो यू द प्रॉपर डायग्रामेटिक, आई विल शो यू प्रॉपर डायग्राम एंड आई विल अगेन टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो मॉडर्न हॉर्स का जो थर्ड डिजिट है, जो टो है, वो मॉडिफाई होकर देखो कितना लंबा हो जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी सारे फिंगर्स थे, जितने फिफ्थ एंड सेकेंड जो आपके जो डिजिट्स थे वो ऑल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, हाईली रिड्यूस्ड। सिर्फ थर्ड वाला बहुत लंबा हो गया, बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया और इसी के ऊपर हॉर्स जो है वो मतलब स्टैंड इसी के ऊपर बेस करके हॉर्स चलता है, इसी के ऊपर बेस करके हॉर्स का पूरा लोकोमोशन होता है। ठीक है, सो दिस इज द comparative study of different types of fossil, or we can call it as phylogenetic lineage as well. ठीक है, so before we move on to the next topic, I need to talk with you with the diagram. ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे ये जो हॉर्स का जो लिम्ब है, फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है बेसिकली, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो पहले हमने देखा था फर्स्ट जो आपका हॉर्स था जिसको हम बोलते हैं इयोहिपस फर्स्ट फॉसिल, तो बिल्कुल बहुत छोटा था, देख सकते हो कितना छोटा था। उसपे जो फिंगर्स थे तो उसका कंडीशन ऐसा था। तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एंड फिफ्थ है वो रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो थर्ड एंड द फोर्थ, दैट इज द स्प्लिंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो टो है, जो डिजिट्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखो कि 4 फिंगर्स स्प्लिंट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है वो भी रिड्यूस हो गया। उसके बाद 3 टोज अगर हम यहाँ पे देखेंगे वो भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन सी दैट द थर्ड वन, आप बीच में अगर ध्यान से देखोगे तो थर्ड वन जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है, लॉन्गर हो रहा है
और बाकी के सारे जो डिजिट्स हैं और जो टोज हैं, जो बोन्स हैं, वो धीरे धीरे घट रहा है, उसका साइज, उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी घट रहा है, और फाइनली वो रिड्यूस होते होते आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन वी रीच टू दी पिलोहिपस, पिलोहिपस तक पहुंचते पहुंचते आप देखोगे जो सिर्फ बचा हुआ कुछ जो पार्ट है आपके टोज के, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ, वो बहुत ही रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो रिड्यूस हो रहा है ना, पिलोहिपस में देखो यहाँ पे भी रिड्यूस हो गया, टो और फिंगर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यहाँ पे भी देखो सेकेंड एंड फोर्थ, और पहले जो फर्स्ट एंड फिफ्थ था वो धीरे धीरे एकदम मतलब मैक्सिमम रिड्यूस होके धीरे धीरे वैनिश हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे यहाँ पे कोई भी जो फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला जो पार्ट था बोन का वो है ही नहीं। ठीक है, सो सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ है वो भी रिड्यूस हो रहा है। लेकिन हम जब पिलोहिपस में फॉसिल को देखते हैं तो वहां पे आप देखोगे जो थर्ड वाला है आपका जो टो, और थर्ड वाला जो हमारा बात किया था हमने फिंगर, वो मैक्सिमम ग्रो कर रहा है, स्ट्रॉन्गर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, लॉन्गर भी हो रहा है, और फाइनली मॉडर्न हर्स में आप देख सकते हो कि जो थर्ड एंड फोर्थ वाला जो आपका, और ये क्या है ना, हम यहाँ पे हाइंड लिम और फोर लिम को दोनों को एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, हाइंड लिम और फोर लिम दोनों, तो यहाँ पे जो भी अदर देन द थर्ड डिजिट, थर्ड टो और द थर्ड फिंगर, all other bones get reduced, highly reduced, so that only the third one get longer and stronger, and this is the final structure. और इसी तरह से हॉर्स ने अपना इवोल्यूशन किया, और हॉर्स के जो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स इस तरह से बने। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये मोलर वाला पार्ट, टीथ वाला पार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्राउन मैंने कहा था बहुत स्मॉल था पहले, ठीक है, उसके बाद वो फिर से स्मॉल ही था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बढ़ा, फिर फाइनली ज्यादा बड़ा हो गया क्राउन, जिसको जो कि हम लोग कह सकते हैं इट इज यूजफुल फॉर ग्रेजिंग पर्पस। तो अगर आप सिर्फ क्राउन का जो टीथ का, मोलर का जो क्राउन का सरफेस अगर देखोगे एरिया वाइज और उसके रीजन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, तो देखोगे पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली द डिफरेंस। ठीक है, so that is a diagrammatic, again because it's very important to you should see the diagram and you should understand that what has happened or what I have discussed. ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉज करके अगर आपको खुद से देखना है, इस डायग्राम को थोड़ा समझना है क्या हमने डिस्कस किया, तो आप देख सकते हो। ओके, चलिए, now we'll move on to the next part, that is you have finished with this one. Now we'll move on to the next topic, not to be waste our time, just give me a moment. Yeah, we'll move on to the next topic. Yeah. Now, next is biogeographical evidences. अब देखो biogeographical evidences ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो जो distribution of the living organism in the entire biosphere or on the earth is actually, हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स है पूरे अर्थ में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उसका उनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, अगर डिफरेंसेस है तो क्यों है, सिमिलैरिटीज है तो क्यों है, थोड़ा ये हम देखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डार्विन फिंचेस के बारे में। ठीक है, ये जो डार्विन फिंचेस है एक्चुअली ये क्या है ना, ये बहुत छोटे साइज के बर्ड्स होते हैं विच आर ब्लैक इन कलर, और ये बर्ड्स जो है ना ये गैलापागोस आइलैंड्स में मिलते हैं, और ऑलमोस्ट द आइलैंड इज एक्चुअली गैलापागोस इज एक्चुअली आर्चिपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो द एंटायर आर्चिपेलागो ऑफ द गैलापागोस इज मेड अप ऑफ 22 आइलैंड्स व्हिच इज लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, और यहां तक डार्विन जो थे वो इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, और वो वहां तक कैसे पहुंच गए वो भी जरूरी है जानना, बिकॉज ही वाज ऑन एक्सपेडिशन, यू नो, लाइक ही वाज ऑन अ वॉयज। ओके, he was on expedition and he was traveling in a ship called HMS Beagle, and he was traveling, and his purpose of this expedition was to study the different types of life form in between and to understand the evolution relationship with one another. That was his purpose. और ये जो डार्विन फिंचेस हमने जो नाम दिया है, जो छोटे जो पक्षी हैं जो हमें कहाँ मिलता है, गैलापागोस आइलैंड्स में मिलता है, उसके नंबर ऑफ वैरायटीज कितने थे? नॉर्मली दे हैव ऑलमोस्ट 20 वैरायटीज ऑलमोस्ट।
ओके, उनके पास कितनी वैरायटीज थी? ऑलमोस्ट 20 वैरायटीज ऑफ द डार्विन फिंचेस वर देयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया, डार्विन ने जो कंपैरिजन किया अलग अलग फिंचेस के साथ, मतलब ये जो 20 अलग अलग 20 जो अलग अलग फिंचेस थे उनके बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया ऑन द बेसिस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला है साइज क्या था उस बर्ड का, दूसरा है बीक शेप क्या था। तो बीक शेप के ऊपर और साइज के ऊपर उन्होंने अलग अलग जो फिंचेस है उसको अलग अलग तरीके से कंपैरेटिवली डिवाइड किया था, ठीक है। और क्या बताया था उन्होंने? डार्विन सेड दैट द डिफरेंस इन द बीक शेप इज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। तो डार्विन ने ये कहा कि जो बीक शेप है जो फिंचेस की अलग अलग है, वो क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। अलग अलग फिंचेस का फूड हैबिट अलग अलग, ठीक है। तो बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट है जो कि डार्विन के इसी जो थ्योरी है इसी को रेक्टिफाई करने के लिए, इसे देखने के लिए उन्होंने फिर से इसके ऊपर स्टडी किया और उनका नाम था डॉक्टर डेविड लॉक। एंड व्हाट ही सेड दैट आफ्टर द रिसर्च that 20 varieties of finches probably evolved from one grain eating variety। उन्होंने क्या कहा कि जो 20 अलग अलग वैरायटी के जो फिंचेस है ये शायद किसी एक वैरायटी ऑफ जो फिंच है उससे इवॉल्व हुआ होगा जो कि ग्रेन ईटिंग मतलब ग्रेन खाती थी, ठीक है। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया, यहां पे फिर से बात करेंगे। मान लीजिए कि एक स्पीसीज है और वो जियोग्राफिकली they have separated because of some reason, and each geographical location they have different environmental condition, maybe the food is also different. So what happens during the course of time, they develop themselves and they adapt themselves in that particular environment and that particular food habit, and after a certain period of time, or maybe after some time, after a long period of time, actually they evolved as a new species, okay. So that means they have started from a single one, but finally because of the condition they have developed into several different types of species, right? And that is called divergent evolution, right? Now because these birds getting different types of food in different island, अब देखो यहां पे ये चीज हुआ कैसे? एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पहला वैरायटी का जो बर्ड था वो जब अलग अलग आइलैंड में सेपरेट हुआ तो अलग अलग आइलैंड में जो फूड था वो अलग अलग था, अलग अलग वैरायटी का। तो अलग अलग वैरायटी का फूड अगर उनको खाना है, उनको अगर उसको कंज्यूम करना है तो उस हिसाब से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से वो डेवलप हो गए, अलग अलग तरीके से उनका जो बीक शेप भी बदल गया, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंटली एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। So divergent evolution. So we will talk about the the next one, and that is a Darwin finches, and then the next is discontinuous distribution. ये तो पहला चीज हो गया जो हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके पहले ये बात करने से पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा कि है क्या। देखिए हम सबको पता है, हमने अपने अपने जूनियर क्लासेस में एटलीस्ट इन ज्योग्राफी में आपने तो पढ़ा ही होगा कि all the 7 continents what we have right now on earth, these were all were previously all were connected and it was a single landmass। पहले ये सब कनेक्टेड था, बाद में धीरे धीरे ये सेपरेट होने लगा और एक दूसरे से दूर होने लगा, ठीक है। तो जो सिंगल जो स्ट्रक्चर था, सिंगल जो कॉन्टिनेंट था उसको हम बोलते हैं पैंजिया बोलते थे। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको पैंजिया, ठीक है। अब देखो ऐसा हुआ कि थोड़ा सा यहां पे समझेंगे, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू। मान लेते हैं कि ये एक जो कॉन्टिनेंट थे ये सब एक साथ थे पहले, ठीक है। तो उस समय क्या था, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पूरे जोन में, ये पूरे जोन में बिकॉज ये सब एक साथ थे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है। अब बताओ ये यहाँ पे मैंने 3 बनाया है स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। तो मान लो कि अगर ये 3 स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग हो जाए, यहाँ पे फिर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये भी अलग हो सेपरेट हो गया, तो ये जो कॉमन जोन था यहाँ पे जो सारे ऑर्गेनिज्म रहते थे तो वो भी सेपरेट हो जाएंगे ना। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो गया, कुछ यहां पे रह गया, सॉरी कुछ यहां पे रह गया, कुछ यहां पे रह गया, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट के साथ ये अलग हो गए,
है ना? तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? बिकॉज द कॉन्टिनेंट इट एक्चुअली separate itself from each other, it get separated from each other, and it separated by a huge amount of distance. As a result, the organism who are living in a common zone, who used to live in the common zone, they all get separated, and that is called discontinuous distribution. ठीक है? इसका एविडेंसेस हमें कैसे मिला या कैसे हम ये बोल सकते हैं, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? Now, so the same thing, you can see the point I have discussed, that earlier all the continents were one place, are in one piece, were in one piece known as Pangea. हम Pangea कहते थे उसको, and then they separate and started moving away from each other, है ना? And because of that, because of the continent separates from each other, as a result we found that the same organism in them. इसीलिए ना हम देखो, जैसे हम एग्जांपल अभी आगे भी बात करूंगा मैं अभी थोड़ा सा. Okay, let us just discuss the point, then I will talk with the example. Now, discontinuous means how, discontinuous मतलब ऐसा क्यों कहते हैं हम? ये इसलिए कहते हैं कि मान लो कि किसी एक कॉन्टिनेंट में कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी एक लाइफ फॉर्म का, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, और वो मतलब हजारों किलोमीटर दूर किसी और कॉन्टिनेंट में भी है. तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब चाइना में मान लो कुछ, यहाँ चाइना में कुछ या इंडिया में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो ऑर्गेनिज्म हमें और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो जाके हमें फिर कहां मिलेंगे? मान लो कि हमें जाके फिर से हमें अमेरिका में मिलेंगे, यूएस में मिलेंगे. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसीलिए ये हुआ कैसे, ये हमें समझना है. तो ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगह पे सेम ऑर्गेनिज्म जब एक समय पे मतलब डेवलप हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो हुआ ये होगा कि शायद जब एक साथ ये पूरा कॉन्टिनेंट था, तो ये कॉमन जोन में ऑर्गेनिज्म रहते थे, और बिकॉज ऑफ दे आर सेपरेटेड नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, एंड नाउ दे हैव सेपरेटेड, एंड लाइक कॉन्टिनेंट सेपरेट हो गया, इसलिए ऑर्गेनिज्म भी सेपरेट हो गया, इसलिए बीच में फिजिकल बैरियर, इतना बड़ा बड़ा ओशन आ गया. एक्चुअल में ये सब एक साथ थे, और इसीलिए हमें ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैग्नोलिया, then tulip, then sassafras. These are the plants are found only in 2 regions in the world. पूरे धरती पे सिर्फ 2 जगह पे हमें ये 3 तरह के जो प्लांट हमें मिलेंगे. कहां पे? एक तो मिलेगा चाइना में, और दूसरा मिलेगा ईस्टर्न यूएसए में. तो आप बताओ, मतलब कुछ चीज आपको ईस्टर्न यूएसए में मिल रहा है, और वही सेम ऑर्गेनिज्म आपको कहां मिलेगा, वो लाइफ फॉर्म कहां मिलेगा आपको? चाइना में मिल रहा है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, there is a huge gap, distance between these 2 countries. तो ऐसा कैसे हुआ? How it is possible? How come it happened? So it is happened because all these continents were actually was a single piece, and during the course of time they have separated, and along with that they have separated the life form as well. So ये भी एक evidence है evolution का. इसी को हम कहते हैं biogeographical evidences. Fine. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एलिफेंट की, हाथी की बात करेंगे, तो पता है आपको हाथी कहां मिलता है सर? इट्स ओनली अवेलेबल, वी कैन सी एलिफेंट ओनली इन इंडिया एंड अफ्रीका, और कहीं नहीं मिलता. दैट इज व्हाई वी आर सो कंसर्न टू सेव दैट्स व्हाई यू आर एक्चुअली गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज वेरी कंसर्न टू सेफगार्ड आवर एलिफेंट्स. क्यों? इसको बोलते हैं एशियाटिक एलिफेंट, हमारे इंडिया में जो मिलता है. ठीक है, क्योंकि पॉचेस जो है उसको कंटिन्यूअसली किल कर रहे हैं, उनका नंबर घट रहा था. क्यों? द पर्पस दे वांट टू गेट द टस्क ऑफ द एलिफेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई, बिकॉज़ वंस वी लूज दिस एलिफेंट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इट बैक. और दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, या तो अफ्रीका में मिलेगा या तो इंडिया में, बस, और कहीं नहीं मिलता एलिफेंट. ठीक है, तो अब देखो अफ्रीका कितनी दूर है इंडिया से, फिर भी हम देख सकते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म है, एलिफेंट जो है वो दोनों जगह पे मिलता है. तो ये कैसे हो गया? मतलब उस समय शुरू में शायद अफ्रीका और इंडिया एक साथ जुड़े हुए थे, बाद में अलग हो गए. ठीक है, नेक्स्ट लंग्स की फिश के बारे में देखते हैं. एग्जांपल लेते हैं. Neoceratodus found in Australia, then Lepidosiren found in South America, then Protopterus found in Africa.
तो अलग अलग लंग फेज अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो गया। ये कैसे हुआ? तो ये भी एक और दूसरा एग्जांपल है, like the biogeographical, this is example of distribution, discontinuous distribution। पहले सब कॉन्टिनेंट एक साथ थे, तो कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गया, ऑर्गेनिज्म वहीं पे रह गया और उसी तरीके से वहां के एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से डेवलप हो गया, राइट? सो दिस इज the example, these are all example of discontinuous distribution which is coming under biogeographical evidences of evolution। ठीक है, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक तो हमने देखा कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म अलग अलग कॉन्टिनेंट में चला गया। दूसरा भी हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो जाता है, कहीं और जा नहीं सकता, नहीं जा पाया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं मार्सुपियल्स। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कौन है? कंगारूज, और भी बहुत सारे हैं, कंगारूज है, रैट्स है, मार्सुपियल रैट्स है। ठीक है, ठीक है, मार्सुपियल मोल है। ठीक है, तो ये जो सारे जैसे कंगारू है, हम बात करेंगे कंगारू का, सो कंगारू हमें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, है ना? तो वो क्या हो गया, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी नहीं गया, सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा। जैसे एंडेमिक भी कहते हैं हम, द स्पीसीज इज एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, कुछ स्पीसीज, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट, कुछ जो लाइफ फॉर्म्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन में ही हमें मिलेगा धरती पे और कहीं नहीं मिलेगा, उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का बात किया, तो अभी हम थोड़ा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करेंगे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम क्या देख सकते हैं, प्लासेंटल मैमल्स और मार्सुपियल्स में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे प्लासेंटल मैमल से हमें जो मार्सुपियल है वो डेवलप हो गया, जैसे माउस से फिर से मार्सुपियल माउस वो डेवलप हो गया, तो फिर ये क्या हो गया, उल्टा चला गया ना इवोल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो मोल से मार्सुपियल मोल बना, उसके बाद माउस से मार्सुपियल माउस बना, राइट? So these are the examples, different like evidences that is we discuss under the biogeographical evidences. Now we'll talk about the next evolutionary evidences, that is called cytological, biochemical and physiological evidences. This is very simple and very interesting. We will finish it fast. See, the enzymes what we can see in different animals. Let us take an example, amylase, trypsins. ठीक है, स्पंजेस में एंड मैमल्स में हर जगह मिलता है। स्पंजेस में भी मिलेगा एंजाइम ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज, मैमल्स में भी मिलता है। तो स्पंज क्या है, ये पॉलीफेरन है, मैमल्स तो सबसे एडवांस एनिमल है। फिर देखो स्पंजेस सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी हमें एंजाइम वो मिल रहा है, एमाइलेज ट्रिप्सिन, मैमल्स में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि शायद हम कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे इवॉल्व होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो वन एविडेंस। ठीक है, that we are studying under the heading of cytological, biochemical and physiological evidences. ठीक है, now hormones like thyroxine which is responsible for metabolic activities in higher organism like mammals, it also help in growth. If thyroxine is injected in tadpole then it stimulates the metamorphosis. अब देखो thyroxine normally हमें कहाँ मिलता है, higher animals में मिलता है, हम देखते हैं ये, और काम क्या है इसका, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और हायर ऑर्गेनिज्म उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अगर ये सेम थायरॉक्सिन अगर हम टैडपोल के बॉडी में डाल दें, इंजेक्ट कर दें, तो वो मेटामॉर्फोसिस को स्टिमुलेट कर देगा, मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली। तो इससे पता है, देखो अब हायर मैमल्स में जो थायरॉक्सिन मिलता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म फाइलम जो है उसमें भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि दे आर कंपैटिबल। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक वेरी गुड एविडेंस दैट all these life forms, they are interconnected and they have all originated from the same source. That is also one of the evidence, right? Then cytochrome C, which is also found in most of the organism, which help in electron transport chain. cytochrome C जो है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मिल जाता है। ठीक है, ऐसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी हमें मिलेगा, जो हायर एडवांस ऑर्गेनिज्म है उसमें भी हमें मिलेगा, और सब में इसका काम वही सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। तो ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन रिलेशनशिप का हमारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बीच में, है ना? नेक्स्ट, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, देखो अब ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या होता है ना, दिस इज सेम,
सबका सेम, और जितने भी वर्टिब्रेट्स में उसमें ब्लड लिंक का जो फंक्शन है वो सेम होता है, ठीक है। ऊपर से जो ब्लड प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं which also known as hematin crystals, okay, and which is very close to chimpanzee and gorilla, ठीक है। So man is very close to chimpanzee and gorilla if we compare the blood protein that is hematin crystal present in both the animals। तो यहां से भी हम देख सकते हैं कि उनमें और हमें कितना सिमिलैरिटी है। तो इससे भी हम जान सकते हैं शायद हम वहां से धीरे धीरे इवॉल्व होके इतना कॉम्प्लेक्स और एडवांस एनिमल बने। दैट इज आल्सो वन ऑफ द एविडेंस। नाउ द प्रोटीन इज सिमिलर इन काउज, गोट्स एंड शीप। जो प्रोटीन होता है बॉडी ब्लड में और जो उनके बॉडी में पाया जाता है वो काउ में, गोट में, शीप में सेम होता है, ठीक है। सिमिलर कैट एंड डॉग्स एज वेल, डॉग्स और कैट्स में भी ऐसा होता है ना। सो दैट इज आल्सो एविडेंस। ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप्स फाउंड इन ह्यूमन एंड एप्स। AB ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है वो सिर्फ हमें ह्यूमन में नहीं, एप्स में भी होता है, ठीक है, बट नॉट सीन इन मंकी, मंकी में नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं इवोल्यूशन, हम पढ़ेंगे, हम जब पढ़ते हैं ना तो हम एक्चुअली बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि ह्यूमन जो है वो मंकी से ओरिजिनेट, ऐसा नहीं है। मंकी से डिफरेंट, दे हैव, वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, दैट इज ट्रू। मंकी एंड अस, वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, बट दे हैव इवॉल्व इन अ डिफरेंट वे एंड वी हैव इवॉल्व इन अ डिफरेंट वे। वो तो अलग है, वो हम बात करेंगे जब इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब। एक्सक्रीट सिस्टम का देखेंगे, टैडपोल फिशेस आर एमोनोटेलिक, फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक, ठीक है। सिमिलरिटीज इन ऑर्गेनेल्स, प्रोटोप्लाज्म इन ऑल सेल्स। अगर आप किसी भी एनिमल का सेल उठाएंगे, उसको हम स्टडी करेंगे तो हमें उसमें जो बेसिक सेल ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेलीज है, और प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो हमेशा लगभग सेम रहता है, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एविडेंस, है ना। सो बाय दिस आई थिंक वी आर फिनिश्ड the evidences of the evidences of the evolution. Now the next we will start with the theories of evolution in the next video lecture. So till then, take care. Bye. Thank you.